6 ମାସ ହେଲା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଆପଣ ଗୃହରେ ନାହାନ୍ତି, କୁଆଡେ ଗଲେ ପଠେଇଲେ ଯେ ବାଣାସୁର କୁ ମହର୍ଷି କହିଥିଲେ ଯଦି ତମ ଗୃହରେ ଯୋଉ ଲାଗିଛି ଯୋଉ ପତାକା ଲାଗିଛି, ତାଙ୍କ ମହଲ ଗୋଟେ ବଡ ପତାକା ଲାଗିଛି, ଯଦି ପତାକାଟା ଖସି ପଡେ, ଯଦି କୌଣସି ମାନେ ପତାକାଟା ଖସି ପଡେ, ଜାଣିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ଆଖାପାଖିର ତାର ହଉଛି କେହି ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। ଏହା ତ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ଅନିରୁଦ୍ଧ ମହାରାଜ ଆସିକି ସ୍ଥାପିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ହେଲା ଯେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଚୋରି ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ବଳରାମଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। ବଳରାମ ସମସ୍ତ ବାଣାସୁରର ଯେତେ ଥିଲା ଆମର ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଏ ନିହତ କଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସେଟାକୁ ଆସିଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେ ବାଣାସୁର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। એટલે ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ବାଣାସୁର ସେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବର ନଥିଲା ନା, କାହିଁକିନା ବାଣାସୁର ଭଗବାନ ମାରିଦେବେ ସୁଦର୍ଶନରେ। ତ ଆସିଲେ କିଏ? ମହାଦେବ। ମହାଦେବ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି ଭାଗବତର, ମହାଦେବ ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଜୋର ଘମାଘୋଟ ଲଢେଇ ହେଇଛି, ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି। ଶେଷରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏମିତି ଏକ ତୀର ମାରିଛନ୍ତି ଯେ ମହାଦେବ ସେଠି ଶୟନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିଦ୍ରା ଆସିଯାଇଛି। ଏବଂ ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ଯେ ବାଣାସୁରର ଯୋଉ ପତାକା ଥିଲା ମହଲରେ, ସେ ପତାକାଟା ତଳକୁ ଖସି ପଡିଛି। ବାଣାସୁର ଭାବିଲା ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହବ। ଦେଖିଲା એટલે ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଦେଖିଲା ସେ ତା ଗୃହରେ ଉଷା ଗୃହରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଯେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଛି। ଏପଟେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମହାଦେବ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେ ତାଙ୍କର ବାଣାସୁର ମୃତ୍ୟୁ ହବ ନା ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେ ମହାଦେବଙ୍କ ଯୋଉ ତୀରଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମହାଦେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଦ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ବାଣାସୁର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଅନିରୁଦ୍ଧ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ହାରି ଯାଇଛି, ସାକ୍ଷାତ ବାଣାସୁର ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ତାର କନ୍ୟା ଉଷାକୁ ଆଣିକି ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଛନ୍ଦି ଦେଇଛି। ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କର ବିବାହ ବାଣାସୁରର ଝିଅ ଉଷାଙ୍କ ସହିତ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଏ ପୂର୍ବରୁ ଲେଟ୍ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନଥିଲୁ। ପ୍ରଣତି ମାତାଜୀ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣତି ମାତା ଜଏନ କରିଛନ୍ତି କି? ପ୍ରଣତି ମାତାଜୀ ଟିକେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବେ। ନାଇଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ପୂର୍ବଭାଷ। ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ, ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ ଟିକେ ଆଟେନ୍ସନ ହେବା ପାଇଁ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କର ପତ୍ନୀ ନାମ କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଉଷା। ଉଷା। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ କଣ? ବାଣାସୁର। ବାଣାସୁର। ଉଷାଙ୍କର ଯିଏ ଥିଲେ ସହେଲି ସଖୀ, ତାଙ୍କର ନାମ କଣ ଥିଲା? ଚିତ୍ରଲେଖା। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧ, ସ୍ଵୟଂଭୁବ ମନୁଙ୍କ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ। ପ୍ରଭାତ ସାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ଭାଗବତଙ୍କ କଥା। ତ ମୈତ୍ରେୟ କହିଲେ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁଙ୍କର ଆକୁତି, ଦେବହୂତି, ପ୍ରସୂତି ନାମରେ 3ଟି କନ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରିୟବତ୍ତ ଉତ୍ତାନପାଦ ନାମରେ 2ଟି ପୁତ୍ର। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କହିଥିଲୁ ସୃଷ୍ଟି ବିସ୍ତାର ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ। ତ ବ୍ରହ୍ମା ଚତୁଃଶର ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସନକ, ସନାତନ, ସନନ୍ଦନ, ସନତ କୁମାର। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କଥା ରଖୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରଜା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିମିତ୍ତ। ତ ସିଏ ରାଜି ହେଲେନି। ତାପରେ ସିଏ କ୍ରୋଧ ଆସିବାରୁ ରୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ମହାଦେବ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ମନା କଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ସେଗୁଡା କରନି, ତମେ ତପସ୍ୟା କର। ଆଜିକା ଡେଟରେ ସେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ 10ଟା ଋଷିଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ।
अत्रि अंगिरा मरीच प्लह प्लस्त क्रतु दक्ष नारद महर्षि एमन माने सृष्टि कले एवं तांकु से प्रजा सृष्टि करने दायित्व देगला से मानसिक सृष्टि होला ता विशेष रूपे प्रभाव पड़लानी से शेष पुणी जे तांकर दक्षिण अंगरु वाम अंगरु मनु शतरूपा को जन्म कले प्रदान कले एवं तांकु मैथुन सृष्टि करने निर्देश देले तांक पाखरु आकुति तीनोटी कन्या दुईटी पुत्र आकुति देवहूति प्रसूति आउ प्रियव्रत उत्तानुपाद तो आकुतिंकर विवाह हला प्रजापति रुचिंग सहित देवहूति कर्दम ऋषि सहित प्रसूति विवाह हला दक्षिण सहित तो आप जानिथिबे सेही संबंध रे आज तांकर वर्णना आगु आगु बढ़िबो सेही तांकरी पाखरु आकुति देवहूति प्रसूति आकुति आगे काहाको विवाह कले आकुति दया कर कहबे आकुतिंकर स्वामी किए प्रजापति रुचि विवाह टिके मन रखिले आपण मेमोराइज कले भलो हबो काना भागवतम कथि आकुति विवाह हले प्रजापति रुचि को देवहूति विवाह हले काहाको प्रसूति का विवाह हले प्रजापति आज्ञा आज्ञा धन्यवाद प्रजापति दक्षिण आम टी मेमोरीज रहिले भल लागे प्रजापति दक्षिण विवाह सेठु सृष्टि प्रारंभ हला तो रुचिंक औरुषरे जो आकुतिंग गर्भरे गोटिए पुत्र और गोटिए कन्या जन्म हेले ये जो हमर माने वंशावली धीरे धीरे स्टार्ट हे गले सब के भागवतम रचंती ये तांका पाखर जो आकुतिंग रुचिंग गर्भरु प्रथम गोटिए कन्या गोटिए पुत्र पुत्र नाम हला कोन यज्ञ जो यज्ञ नारायण भगवान यज्ञेश्वर आउ नारी की हेले कन्या दक्षिणा यज्ञ आउ दक्षिणा तो यज्ञ रूपी पुत्रटी से मनुंकर पुत्र हेले एठार देखंतु एक कथा टिके मन रखथिबे सुंदर कथा टी बना दिया छी जे आकुति गर्भरु जन्म हेले जो आकुति कोन तार रुचिंक औरुषरु बा आकुति गर्भरु जन्म हेले के एक गोटिए पुत्र गोटिए कन्या पुत्र नाम कोन हला यज्ञ आ कन्या नाम कोन हला दक्षिणा किंतु जो यज्ञ से कहले मनु कहले ये मोर पुत्र से मनुंकर पुत्र हे गेले माने आकुतिंकर पितांकर पुत्र तार कारण कोन जे भागवत वर्णन दिया होईची जे पुत्रिका धर्म गोटे अछि पुत्रिका धर्म जेते बेले मनु महाराज आकुतिंकु रुचि प्रजापति सहित विवाह करथिले तांक सहित कंडीशन करथिले जदि ये मोर कन्या गर्भरे पुत्र संतान उत्पादन हुए से पुत्र मोर हम पुत्रिका धर्म गोटे अछि जेते बेले से यज्ञ नारायण उत्पन्न हेले से कार पुत्र हेले मनुंकर पुत्र हेले कारण सेही से कंडीशन थिला पुत्रिका धर्म अनुसार सी आगे कंडीशन थिला तांकर से पुत्र हेले सेही हिसाब रे यज्ञ नारायण यज्ञ रुचि आकुति प्रजापति रुचिंक गर्भरु संभूत किंतु से पुत्र हेले कार मनुंकर गला तापरे कालक्रमे यज्ञ दक्षिणांक विवाह करी 12टी पुत्र से पुत्र का नाम अछि हरे कृष्ण महर्षि कर्दमंकर 9टी कन्या महर्षि कर्दमंकर 9टी कन्या जात हेले माने वंश वृद्धि किंतु देखंतु श्री ब्रह्मा जी महर्षि अत्रि को प्रजा सृष्टि करिया पई आदेश देले काको महर्षि अत्रि को से सहधरणी अनुसुयंक सहित रक्ष नामक पर्वत को जाई कठोर तपस्या कले देखंतु कहा कहले जे ब्रह्मा जी उनकर पुत्र अत्रि अत्रि को कहले प्रजा सृष्टि करिया पई सिए कहा को विवाह कले कर्दम जो देवहूतिंकर पुत्र कर्दम कर्दम स्वामी पत्नी देवहूति तांकर पुत्री हेले अनसुया कर्दमंक पुत्री अनसुयंक विवाह कले किए अत्रि से ब्रह्मांकर पुत्र बुझिया लागे आज्ञा ब्रह्मांकर पुत्र अत्रि विवाह हेले काहाकू
कर्दमଙ୍କର କନ୍ୟା କା କିଏ ଅନସୁୟା ଅନସୁୟା ଅନସୁୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ એટલે ଅନସୁୟା ପ୍ରଜାପତି ମାନେ ଦମ୍ପତି ସିଏ ରକ୍ଷ ନାମକ ପର୍ବତକୁ ଗଲେ କଠୋର ତପସ୍ୟା କଲେ ଭଗବାନ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କଥା ରଖୁଛି ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ ବହୁତ ଲମ୍ବା କଥା ସିଏ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇକି ତ୍ରିଦେବ କିଏ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ସାକ୍ଷାତ ଅନସୁୟାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ତ ଅନସୁୟା ପଚାରିଲେ ଦମ୍ପତି ପଚାରିଲେ କି ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଜଣକୁ ଡାକିଥିଲୁ ଆପଣ ତ୍ରିଦେବ କାହିଁକି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତ୍ରିଦେବଙ୍କ କରୁଣାରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶରୁ ସମ୍ଭୂତ ହେଲେ କିଏ ସୋମ ସୋମ ନାମକ ପୁତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅନସୁୟା ଗର୍ଭରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅଂଶରୁ ସମ୍ଭୂତ ହେଲେ କିଏ ପୁତ୍ର ନାମ ସୋମ ସିଏ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଅଂଶ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅଂଶରୁ ଜାତ ହେଲେ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କ ଅଂଶରୁ ଜାତ ହେଲେ କିଏ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ମନେ ରଖିଥିବେ ଯୋଉ ଅନସୁୟାଙ୍କର ତିନୋଟି ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଲେ ସୋମ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଆଉ ଦୁର୍ବାସା ସୋମ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶ ସେ କୋଉଠି ସେ କାହାଙ୍କ ଅଂଶରୁ ସମ୍ଭୂତ ହେଲେ କାହାଙ୍କ ଅଂଶରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅଂଶରୁ ସମ୍ଭୂତ ହେଲେ ସୋମ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ମନେ ରଖିଥିବେ ସୋମ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅଂଶରୁ ସମ୍ଭୂତ ହେଲେ ଅନସୁୟାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ କିଏ ସୋମ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଉ ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ କାହାଙ୍କ ଅଂଶରୁ ଜାତ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅଂଶରୁ ସମ୍ଭୂତ ହେଲେ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଆଉ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି କାହାଙ୍କ ଅଂଶରୁ ଜାତ ହେଲେ ମହାଦେବ ଏପରି ତିନୋଟି ତ୍ରିଦେବଙ୍କ ଅଂଶରୁ ତିନିଟା ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଲେ ଅତ୍ରିଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅଂଶରେ ସୋମ ନାମକ ପୁତ୍ର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅଂଶରେ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଏବଂ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଅଂଶରେ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ମହର୍ଷି ପୁଲସ୍ତ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ରବା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମାନେ ବୃଦ୍ଧି ହଉଛି ମହର୍ଷି ପୁଲସ୍ତ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର କିଏ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ରବା ବିଶ୍ରବାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପତ୍ନୀ ଇଳବିକା ଆଉ କେସିନି ବୁଝିପାରିଲେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ରବାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପତ୍ନୀ ଇଳବିକା ଆଉ କେସିନି ଇଳବିକାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହେଲେ କୁବେର ଆଉ କେସିନଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହେଲେ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବିଭୀଷଣ ଆଉ କନ୍ୟା ମାନେ ସୁପର୍ଣ୍ଣେଖା ଦେଖନ୍ତୁ ମହର୍ଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ କିଏ ମାନେ ପୁଲସ୍ତ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ କିଏ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଆଉ ବିଶ୍ରବା ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କର ପାଖରୁ ମାନେ ବିଶ୍ରବାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପତ୍ନୀ ଇଳବିକା ଆଉ ହଉଛି କେସିନି ଇଳବିକାର ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହେଲେ କିଏ କୁବେର ଯିଏ ମାନେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଯିଏ ରକ୍ଷକ ଭଣ୍ଡାର ରକ୍ଷକ ସେ ହେଲେ କୁବେର ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କାହାଠୁ ଇଳବିକାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଆଉ କେସିନଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ କିଏ ହେଲେ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବିଭୀଷଣ ଆଉ ସୁପର୍ଣ୍ଣକା ବାସ୍ ହଁ ତେବେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଆମର ମାନେ ରାବଣ ଏ ଯୋଉ କହନ୍ତି ବିଶ୍ରବାଙ୍କର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ବଂଶ ଆଉ ବିଶ୍ରବା ସେଠି ବିଶ୍ରବାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ହଁ ଯେ ବିଶ୍ଵଙ୍କ ଜନ୍ମ ଯେ ଏଟା ହଉଛି ସତ୍ୟର କଥା ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ମହର୍ଷି ପୁଲସ୍ତ୍ୟଙ୍କର ମାନେ ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କିଛି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ପଡିଲା କିଏ ମହର୍ଷି ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ସିଏ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସିଏ ମେରୁ ପର୍ବତକୁ ଗଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ସେ କୋଉଠି ଗଲେ ସିଏ ଗଲେ ହଉଛି ଯେ ମେରୁ ପର୍ବତରେ କିଛି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ରବାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଯିଏକି ମାନେ ରାମାୟଣର ମୁଖ୍ୟ ଦଶାନନ ରାବଣର ପିତା ହେଲେ କିଏ ବିଶ୍ରବା ହଁ ତାଙ୍କର କିପରି ଜନ୍ମ ଟିକେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରଖିବା ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଛି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ପଡିବାରୁ ସେ ମେରୁ ପର୍ବତରେ
ଅବସ୍ଥାନ କଲେ ମେରୁ ପର୍ବତ ଗଲେ ଏବଂ ମେରୁ ପର୍ବତରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟାଦି କଲେ। ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମେରୁ ପର୍ବତକୁ ଗଲେ ସେଟା ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟା କଲେ କିଏ? ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ଋଷି। ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି ବା ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ସେଠାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଯୋଉ ମେରୁ ପର୍ବତ ପ୍ରକୃତି ଦତ୍ତ ନା, ଏଟା ବୃକ୍ଷଲତା ଆଉ ନଦୀ ପୁଷ୍କରଣୀ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଯୋଉ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ରାବ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକୃତି, ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକୃତି। ଯେହେତୁ ପ୍ରକୃତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, କିଛି ଅପ୍ସରା ଆଉ ସେ ଆଶ୍ରମର କିଛି କନ୍ୟା ମାନେ ଆସିକି ସେଠାରେ କଣ କରନ୍ତି? ବିନୋଦ କରନ୍ତି, ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି, କଥା ହୁଅନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରନ୍ତି। ସେ ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ଋଷି ସେଠି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ଏମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ବିନୋଦ କଲେ, ମନୋରଞ୍ଜନ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ଅନୁକୂଳସ୍ୟ ଗ୍ରାହ୍ୟମ୍ ପ୍ରତିକୂଳସ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟମ୍, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯେ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ସେ ନ ଶୁଣିଲେ, ଯେ ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ଋଷି ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ଶାପ ଦେଲେ। ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପ କଣ କହିଲେ? ପାଟିରୁ ବାହାରିଲା, ଯେଉଁ ଅପ୍ସରା ଏବଂ ଆଶ୍ରମ କନ୍ୟା ଯଦି ଏଠାରେ ଆସିକି ମାନେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ପଡିବେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଯିବେ। ଇଏ ତାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପ ବାହାରି ପଡିଲେ। ତେବେ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ, ଯଦି ଆମେ ଏଇ ମାନେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ବିନୋଦ କରିବୁ ବା ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବୁ, ଋଷିଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ତ ତାଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ଆମେ କଣ ହେଇଯିବୁ? ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଯିବୁ। ସେଠି ସେ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ତୃଣବିନ୍ଦୁ ସେଇ ଯୋଉ ମାନେ ମେରୁ ପର୍ବତ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା, ସେ ଯୋଉ ଆଶ୍ରମରେ ସେ ଭଜନ କରୁଥିଲେ, ସେ ଆଶ୍ରମର ଋଷି ଥିଲେ ତୃଣବିନ୍ଦୁ। ତାଙ୍କର ଏକ କନ୍ୟା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପ କଥା କହିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତୃଣବିନ୍ଦୁଙ୍କର କନ୍ୟା ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। ସେ ତାପରେ ଆସିଲେ। ଏମାନେ ତ କେହି ଆସିଲେନି, ସବୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପ କେହି ଆସିଲେନି, ଅପ୍ସରା ମାନେ ଆସିଲେନି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସିଏ ଅଜ୍ଞତା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ତ ସିଏ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତପସ୍ୟା ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, କହିଲା ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ମତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଚାଲିଗଲେ, କାହାର? ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ଋଷିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିକାର ହେଲା। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ କଣ ମୋ ଶରୀରରେ ବିକାର ହଉଛି, ଶରୀର ମାନେ ଇଏ ହଉଛି ପିଲା ୟେଲୋ କଲର ହେଇଗଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଗର୍ଭ ଉଦୟ ହେଲା। ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଧାବିତ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ। କିଏ? ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆମର କଣ ତାଙ୍କ ନା, ତୃଣବିନ୍ଦୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାବିତ ହେଲେ। କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ପିତା ଏମିତି ହେଇଛି। ସେ ଦେଖିଲେ କଣ ଅଦ୍ଭୁତ, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କଣ କେମିତି ହେଲା? କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋର ଯୋଉ ମାନେ ସେହେଲି, ମୋର ସଖୀ, ତାଙ୍କୁ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି, ଋଷିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଚାଲିଗଲି ଖୋଜି ଖୋଜି, ତ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ସେଠୁ ସିଏ ତୃଣବିନ୍ଦୁ, ସିଏ ଜଣେ ମାନେ ଋଷି ନା, ସିଏ ଜଣେ ମହାନ ଋଷି। ସିଏ ଜଣେ ମହାନ ଋଷି। ସିଏ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ବଳରେ ଯେ ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ଋଷି ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯିବେ ସେମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବେ। ତେଣୁକରି ସିଏ ବୁଝିପାରିଲେ। ସେ କଣ କଲେ? ତାଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ନେଇକି ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ଋଷିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା କରିବେ, ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ବଡ ତପସ୍ୱୀ, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ନିମିତ୍ତ ମୁଁ ମୋର କନ୍ୟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲି। ଆପଣ ତାକୁ ସେବିକା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ପତ୍ନୀ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ଋଷି ତାଙ୍କ କଥାରେ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ? ଆଜ୍ଞା, ତୃଣବିନ୍ଦୁଙ୍କ କନ୍ୟାଙ୍କ ନାଁ କଣ? ତୁଳସୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯେ। ହଁ ତୃଣବିନ୍ଦୁଙ୍କ କନ୍ୟା ମୁଁ କହିବି, ଟିକେ ମନେ ପଡୁନି, ଭୁଲି ଯାଇଛି, କହିବି। ତ ତୃଣବିନ୍ଦୁଙ୍କର କନ୍ୟା, ତାଙ୍କ ନାଁ ରେଖା ନା କଣ ଏମିତି ନା ଏମିତି କଣ ଅଛି, ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ତୃଣବିନ୍ଦୁଙ୍କର କନ୍ୟା, ସିଏ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସିଏ ପ୍ରଦାନ କଲେ କାହାକୁ? ପୁଲସ୍ତ୍ୟକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। କିଏ? ତୃଣବିନ୍ଦୁ ପୁଲସ୍ତ୍ୟକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଆପଣ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ
जो समय रे से वेद मंत्र उच्चारण करती यज्ञ तपस्या करती तृणबिंदु कन्या जे सी सुंदर भाव माने केयरफुली सी समस्त वेद को श्रवण करती समस्त वेद को श्रवण करके सी कौन कले मनस्थ भितर कंठस्थ करदे से समय गर्भर संतान थिला एवं जेतेबेले से संतान उत्पादन हेले जेहेतु से कहले तमे समस्त कथा को श्रवण करिचो समस्त वेद वेद श्रवण करिचो कि तांका ना हबा विश्रवण बा विश्रवा समस्त वेद वेद श्रवण करथवा तो विश्रवण लोकंक मुखरे ता ना हबा विश्रवा छेले विश्रवा एवं विश्रवंग ऋषिंकर पुत्र किए दशानन तांकर कहया पई समय कम अछि पुन नेक्स्ट क्लास रे कतल कहबा तो ये होचंती धीरे धीरे आगु गले के पुलस्त ऋषि तापर आसीबा केसिनिंक गर्भरु रावण कुंभकर्ण विभीषण आ जो इळविका गर्भरु जातले किए कुबेर देवतांकर जे कोषाध्यक्ष कुबेर सी मते जातले जन्म हेले तापर अथर्व ऋषिंक पत्नी चित्तिंक गर्भरु जात हेले किए आविर्भूत हेले किए दधीची आगे देखंतु दधीचींक संबंध मध्ये टिके कथा रखिबा कि दधीची ऋषि से माने दृढ़ तपस्या यज्ञ तपस्या माने तपस्या करथले एते दृढ़ तपस्या कले जे इंद्र भाबिले अरे ई दधीची ऋषि एते बड़ एते तपस्या करथने कोन मोर इंद्र आसन नै जेबे इंद्र आसन हली गला पूरा तो इंद्र सेठ कोन कले जे एक अप्सरा इंद्र एक अप्सरा तंगल जे अलमभूषा एवं कामदेव अलमभूषा आ कामदेव को सी प्रेरण कले दधीची ऋषि निष्ठार सहित तपस्या कले तपस्या रे इंद्र पूरा अत्यंत भय रे काले मोर पोस्ट मोर माने आसन नहीं जीवे कि इंद्र आसन पूरा थरहर है से सी गोटे अप्सरा अलम्भूषा आ कामदेव को पठेले जाओ तांकर तपस्या को भग्न कर तो से आसिले अलम्भूषा आउ कामदेव आसिक जिते प्रकार नृत्य कले भंगी कले तो दधीची ऋषिंकर तपस्या भग्न हो पाला नहीं शेष से विफल है कि प्रत्यावर्तन कले एवं इंद्र सम्मुख रे कथा कहले इंद्र आश्चर्य हेले से साक्षात स्वयं कहले मु निजे जीवी निजे जाय कि तार दधीचींकर वध करते से निजे साक्षात तांकर ब्रह्मास्त्र सहित देवादेवी सहित अनुचर सहित तांकर सेवक सहित आसी पहुंचले कोठी दधीची ऋषिंक पाखरे एवं समस्त प्रकार अस्त्र प्रेरण कले जेते प्रेरण कले भी माने अभेद्य शरीर कहार दधीचींकर से शरीर रे किछि भी प्रभाव पकैला नहीं शेषर से जे अस्त्र प्रेरण कर थकी गले एवं से जे निराश हो फेरी गले किए इंद्र आगे जो इंद्र पठे थिले जो अफसर तंग ना कौन कहले अलम्भूषा हाँ धन्यवाद तो सी फेरी गले प्रत्यावर्तन ही गले एवं इंद्र मते साक्षात सी प्रत्यावर्तन करिकि तांको आज्ञा आज्ञा दधीची ऋषिंक मां को ना दधीची पा तांकर पा ये जो हमर ओइली बाबू ना तांको ना तांको पिता माता माने पिता हेले अथर्व ऋषि माता हेले शांति दधीची ऋषिंकर पिता नाम होची अथर्व ऋषि आ तांक माता नाम होची शांति तो जब उसे प्रत्यावर्तन कले इंद्र मध्य किसी पारले माने कोनोसी माने कार्य रे सक्सेस हे पालेनी फलवती हे पालेनी दिनकर घटना जे इंद्रंक सभा को आस्थांती के तांकर गुरु हेले के इंद्रंकर बृहस्पति आसंती जेतले आसी पदार्पण कले इंद्र
ତାଙ୍କ ଆସନରୁ ଉଠିଲେନି, ଅହମିକା ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଅହଙ୍କାର ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଆସନରୁ ଉଠିଲେନି। ତ ସେଠୁ କଣ କଲେ, ବୃହସ୍ପତି ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ପଳେଇଲେ। ଯଦି କୌଣସି ବୈଷ୍ଣବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଅପରାଧ ହେଇଯାଏ। ତ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅପରାଧ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅପରାଧ ହେଲା, ଏଠାରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି, ଏଇଟା କହିସାରିଲା ପରେ କହିବି, କାଳେ କଥା ବିସ୍ତୃତ ହେଇଯିବ। ତ ସିଏ ବୃହସ୍ପତି ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଦେବଗୁରୁ ଥିଲେ ବୃହସ୍ପତି, ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ଦେବତା ମାନଙ୍କର କେହି ଗୁରୁ ରହିଲେନି, ପୁରୋହିତ ରହିଲେନି। ସେଠୁ ସେ କଣ କଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱଦେବଙ୍କୁ ଗୁରୁ କଲେ, ଦେବଗୁରୁ। ବିଶ୍ୱଦେବ କଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ମାନେ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି, ଯଜ୍ଞର କିଛି ଅଂଶ ସେ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏକଥା ଦେଖିଲେ କି ଇନ୍ଦ୍ର, ଆରେ ବିଶ୍ୱଦେବ କୁ ମୁଁ ଗୁରୁ କରିଥିଲି, ସିଏ କଣ ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ଯଜ୍ଞ ଭାଗ ରାକ୍ଷସକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ସେଠୁ ସେ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ମସ୍ତକକୁ ଛେଦନ କଲେ। କାହା ମସ୍ତକକୁ ଛେଦନ କଲେ? ଇନ୍ଦ୍ର। ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱଦେବ। ବିଶ୍ୱଦେବଙ୍କ ମସ୍ତକକୁ ଛେଦନ କଲେ। ବିଶ୍ୱଦେବ ଯେତେବେଳଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ପିତା ହେଲେ ତୁଷ୍ଟା, ତୁଷ୍ଟାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ବିଶ୍ୱଦେବ। ତୁଷ୍ଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧର କଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କଲେ, ଏବଂ ସେ ଯଜ୍ଞରୁ ଏ ମହା ବଳିଆନ ବୃତାସୁର, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବୃତ୍ରାସୁରର ଜନ୍ମ ହେଲା। ବୃତ୍ରାସୁରକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ କାହାକୁ? ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରେରିତ, ତାକୁ ମାରିଦଉଟା। ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବିଶ୍ୱଦେବଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ, ମସ୍ତକ କାଟିଦେଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧରେ ବୃତ୍ରାସୁରକୁ ଯଜ୍ଞରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିକି ତାଙ୍କର ମାନେ ବିଶ୍ୱଦେବଙ୍କର ପିତା ତୁଷ୍ଟା ପ୍ରେରଣ କଲେ କାହା ପାଖକୁ? ଇନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ, ଯାହା ତାଙ୍କର ମସ୍ତକକୁ ସେ ଉଚ୍ଛେଦନ କରି। ଇନ୍ଦ୍ର ଜାଣିପାରିଲେ, ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଦେଲେ କି କାମ କର, ତମେ ଦଧିଚି ଋଷିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ଏକମାତ୍ର ବୃତ୍ରାସୁର ମରିବ ଦଧିଚି ଋଷିଙ୍କର ହାଡରେ ନିର୍ମିତ ଅସ୍ତ୍ରରେ ସେ ମରିବ, ନହେଲେ ଆଉ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ମାରିପାରିବ, କୌଣସି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦଧିଚି ଋଷିଙ୍କର ହାଡରେ ବନା ହେଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହବ। ତ ସେଠୁ ସେ କଣ କଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବାଦେବ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲେ କୋଉଠି? ଦଧିଚି ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ। କୁଆଡେ ଆସ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ୍ରିଲୋକର ମଙ୍ଗଳ ନିମିତ୍ତ, ଶାସ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା ଯାଇଛି, ମାନେ ଦଧିଚି ଋଷିଙ୍କ ଭଳି ଆତ୍ମ ତ୍ୟାଗ ଏଭଳି କେହି ଋଷି ନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ତ୍ରିଭୁବନକୁ ମଙ୍ଗଳ କରିବା ନିମିତ୍ତ। ତ ସେ ଦେବାଦେବମାନେ କହିଲେ ତ୍ରିଭୁବନର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିଭୁବନ ପୁରା ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଭୟାକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଭୀତତ୍ରସ୍ତ। ତେବେ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କଣ ମତେ କଣ ଚାଷଜ୍ଞା କରୁଛ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା, ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଦରକାର, ଆତ୍ମା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ, ଶରୀର ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି କଣ ଅଛି? ପ୍ରେମ ଅଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ପ୍ରେମ ଅଛି, ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ତ ମୁଁ କିପରି ପ୍ରଦାନ କରିବି? ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବିନି। ଏମାନେ ବଡ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବଦେବୀ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନସ୍ତାପ କଲେ, ନହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଇଯିବ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗର୍ଦନ କଟିଯିବ। ଶେଷରେ ଦଧିଚି ମୁନି ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲି, ଯଦି ତ୍ରିଭୁବନ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରେ, ତେବେ ମୋର ଶରୀରର କି ଲାଭ କଣ? ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରି ଖୁସିରେ ସେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପ୍ରଦାନ କରେ କି ଦଧିଚି ଋଷି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଧିଚି ଋଷିଙ୍କର ହାଡରୁ ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ର ନିର୍ମିତ ହେଲା, ବଜ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ନିର୍ମିତ ହେଲା, ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ନିର୍ମିତ ହେଲା, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରରେ ବୃତ୍ରାସୁରର ବଧ ଥିଲା। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଯିଏ ଅତ୍ରିଙ୍କର ପାଖରୁ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶରୁ ସୋମଦେବ, ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅଂଶରୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଏବଂ ଦୁର୍ବାସା ଜନ୍ମ ହେଲେ କାହା ଅଂଶରୁ? ମହାଦେବଙ୍କ ଅଂଶରୁ।
तापर आमे गले अगस्त ऋषि जन्म, विश्रभकर जन्म, विश्रभकर माने इतिहास श्रवण कले। तापर केशिनी घर आसिले रावण, कुंभकर्ण आउ विभीषण एवं सुपर्णेखा तांकर गला। अथर्व सिंह पाखर जन्म हेले किए दधिची। एवं तापर आमे जिबा जे भृगुंक वंशरे हाँ एठारे आमे छाड़िले जे दुर्वासा संबंध सबु ऋषि संबंध कहले बहुत समय पड़िबो। इंपोर्टेंट कथा कथा टिके रखिबा। ये दुर्वासा ऋषि आपण जानिथिबे दुर्वासा ऋषि एटा काना प्रथम अध्यायटा बहुत आगे विराट बड़ तथापि संक्षिप्त रखुची। तो दुर्वासा ऋषि आपण जानिथिबे क्रोधी शिवंकर अवतार क्रोधी। थरे दुर्वासा ऋषि कोन होईची जे इंद्रदेव आसुचंती आकाश मार्गरु ऐरावत पृष्ठरे दुर्वासा ऋषि जाउचंती साक्षात हे गला। दुर्वासा ऋषि कोन कले तांको गळार गुटे पुष्पमाला काढी की प्रदान कले कहा इंद्र। तो इंद्र से माला को गोटे सामान्य बोली भाबी कि तांकर हस्ती ऐरावत को परिधान कर दो। तो ऐरावत हस्ती से माला को निकल कला हस्त हाथी से काढी की तळे पके की पादर चकट देला। बोले पादर चकट देला दुर्वासा ऋषि क्रोध कले। महालक्ष्मी मध्य क्रोध कले एक कथारे तांको अभिशाप प्रदान करा गला। से घरे घरे मध्य पृष्ठ रे गां गां रे माने भिक्षुक तुल्य भिक्ष मागी की भिक्षा अन्न ग्रहण करके से चलिले। तब एमित अभिशाप दिया एवं आउ जानते दुर्वासा ऋषि दुर्योधनर कुमंत्रणा रे जनामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति जनामि अधर्मं न च मे निवृत्ति तया ऋषिकेश सुधी स्थितेन यथा नियतस्थि तथा करोमि यथा नियतस्थि तथा करोमि यथा नियतस्थि तथा करोमि। ये दुर्योधन कोची जनामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। देखंतु मु धर्म कोन जाने किंतु न च मे प्रवृत्ति मु प्रवृत्ति पर धर्मटा कोन जानुची कि मु हेतरे प्रवृत्ति कर। आजकल लोकंकर नेचर मध्ये से जनामि अधर्मम मु अधर्म मध्ये कोन जाने न च मे निवृत्ति सेत्र में निवृत्ति कर बुझी पाउची एटा धर्म ए कार्य रे प्रवृत्ति हेले मु धर्म कार्य करि परिबी भगवान को प्रसन्न करि परिबी किंतु मु करि पारुनी के कहूची दुर्योधन। एवं से कहूची मु जानि परची एटा अधर्म नचमे निवृत्ति सेथुर मध्य निवृत्ति कर मु सेथरे प्रभावित होची। चंचलम हि मना कृष्ण प्रमाथि बलभद्रढम तस्यहं निग्रहं मन्ये वायुरीव सुदुष्करम् धायते विषयान् पंश संगम से सुपजायते संगात संजायते काम कामात् क्रोधः विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहो सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। एटा अंतिम स्थिति शेष स्थिति प्रणश्यति एक व्यक्तिर अधपतन। सेई दुर्योधन पठेइची कुमंत्रणा करी काहाकू ये दुर्वासा ऋषि को तमे द्रौपदी पाख को जाओ 10,000 शिष्यों को नहीं से प्रदान करि परिबने खाद्य अपराध हो आपण कोन करबे अभिशाप दे। जदि माने एमिति भेइची जदि कोन से व्यक्ति कर क्रोध अछि से वैष्णव को पठेबे यदि से वैष्णव सेवा कर न पारले यदि अपराध कले यदि वैष्णव किछि अभिशाप दे देले से आगे ताका फळी जीवो तांको राग क्रोध सोजी। यदि आपण को वैष्णव को पाद पद्म किछि अपराध कर देले से यदि अप्रसन्न है कि कोन से पार्टी बाहर कर देले कारण भगवान दुईटी मुख अग्नि आ वैष्णव रसम वैष्णव जी होया जेते बेले मु खाया पई इच्छा करे
अत्यंत मो लालायित हो पड़े कृष्ण कहते जगन्नाथ जिते मु अत्यंत लालायित हुए से वैष्णव जिह्वारे बसी जाए वैष्णव जिह्वया रसम कौन करे वैष्णव मनकर आप घर जन वैष्णव आप सुंदर भाव अन्न व्यंजन प्रदान कर मिठा पिठा सी प्रसन्न हो खाऊ साक्षात भावे कृष्ण ही खाऊ कृष्ण ही खाऊ रसम वैष्णव जीवया साक्षात कृष्ण ही आपण घर खाऊ भगवान कहते प्रति क्षण प्रति माने खाद्य खाइले ढुकिले जेते प्रत्येक स्वादुरे मु कौन करे स्वादु ग्रहण करे प्रत्येक आहार रे प्रत्येक ग्रास रे मु स्वाद ही ग्रहण करे कृष्ण प्रसन्न हो जाते जिते वैष्णव जिते खाऊ प्रसन्न है कि जिते ग्रास करुवे जिते थर खाद्य ग्रहण कर ढुकुवे से थर कृष्णकर पेट पुरी रसम वैष्णव अग्नि ठार अग्नि रे घृत प्रदान कले जिते प्रसन्न न होती जड़े वैष्णव ग्रहण करती से 100 गुण प्रसन्न हो जाते तेज से अपराधी कर किए दुर्योधन पठेची अपराधी करे अपराध अभिशाप देके आसबे से पहुंचे 10,000 शिष्य सहित का घरे द्रौपदी घरे एवं द्रौपदी पाखरे गोटे अच्छी अक्षय पात्र सूर्योदय प्रदान करते अक्षय पात्र से अक्षय पात्र तात्पर्य जेते बड़े पर्यंत याज्ञसेनी अन्न प्रसाद भक्षण न करिसंती जेते अतिथि आसले 10, 50, 100, 1000, लक्षे कोटी जेते अतिथि आसले भी यदि याज्ञसेनी ग्रहण न करिया पर्यंत जेते अतिथि आसिबे समस्त प्रसन्न है कि से प्रसाद पाइके जिवे हर्ष चित्त प्रसाद पाइबे से कमी हबनी किंतु दुर्योधन कौन कही कुमंत्रणा करछि ना जिते बड़े याज्ञसेनी ग्रहण करने प्रसाद अंतिम शेष से पंचपांडव सेवा करेंगे अतिथि सेवा करेंगे सबू पशु पक्षी कीट पतंग समस्त की प्रदान करेंगे शेष याज्ञसेनी से कौन करेंगे खाइबे अहल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरत नित्यं महापातक नाशम द्रौपदी द्रौपदी ग्रहण करेंगे एटले ग्रहण करदेले सेते बेले दुर्योधन पठेला आपण जान आसी पहुंच गले द्रौपदी याज्ञसेनी बड़ दुख प्रकाश कले कोन करिवो 10,000 शिष्य आसंती तांक सहित तांको लाग्या जाबे तांकर आतिथ्य पाद्य ग्रहण कले सेवा कले अतिथि एवं दुर्वासा ऋषि कहले आमे समस्त प्रसाद पाइबू जाऊ जो गंगा स्नान करिवू गंगा स्नान कर आसला पर प्रसाद जानती द्रौपदी खाइ छट आज्ञा तो गले प्रस्थान कले गंगा का गर्भ को सही समय रे याज्ञसेनी भगवान कृष्ण को षडांग शरणागति हईवे जहार तहार प्रार्थना सुने सिनंद कुमार तो भगवान को प्रार्थना कले महाप्रभु मत रक्षा करंतु 6 प्रकार शरणागति अछि दैन्य आत्मनिवेदन गपतृप्त वर्ण अवश्य राखिबे कृष्ण विश्वास पालन मते कृष्ण रक्षा करिबे निश्चित जो दृढ़ आमे भजन करछे भजन निष्ठा नै कोन करछंती पाळा करछंती तिलक होजंती भागवत पाठ करछंती हेई पार न हेई पारे मु तो करूची जो किंतु जे जथा मांग प्रपद्यन्ते तांग तथैव भजाम्य जे मते जे प्रकार भजन करे मु से प्रकार फल प्रदान करे मध्यम अधम उत्तम 3 प्रकार भक्त अछन आगे कथा विस्तृत होई जिवो तो कहबा तात्पर्य जो प्रकार भजन से प्रकार फल द्रौपदी भगवान को प्रार्थना कले भगवान श्री हरि आविर्भूत हले बोले आज्ञा मु तो खाई सारछि न खाइले पर्यंत जेते आसीबे सेवा ऑलरेडी खाई सारछि मत तांको सेटिंग सेही ब्लेसिंग ही मिली आशीर्वाद ही मिली खाई साला परे
आउ कि गोटे लोक से दे परिबे तो भगवान आविर्भूत हेले आविर्भूत कौन कले से कहले आण तुम से अक्षय पात्र काण अक्षय पात्र धोई देछन କିଛି ନାହିଁ क्लीन सेटा देखिले देखिले गोटे साइड रे टिके अन्नकणा लागिछि भगवान कर लीला टिके अन्नकणा ही लागिछि ताको कोन कले से निजे नै कि तंक जिहार रखिले के भगवान कृष्ण सेही समय कोन होइछि एमन जाई तम रागर जाइछन आमे स्नान करबा आसीबु अभिशाप दबु 10,000 शिष्यक सहित दुर्वासा महाऋषि से कौन करते गंगा स्नान करते जतले डुब मारचंती ले भगवान कृष्ण टिक्के को अन्नकण टिक्के थिला नि तंग जीवारे रखिचंती भगवान खाचन ना जस्मिन तुष्टे जगत तुष्टो हरउ तुष्टे जगत तुष्टो एटा कथा कहै कार्य राज्ञ किए संतुष्ट है समग्र जगत संतुष्ट हुए जस्मिनी तुष्टे जगत तुष्ट से किए हरउ तुष्टे जगत तुष्ट जहांक तुष्टि रे समग्र जगत परि प्रसन्नता लाभ करे समग्र जगत परितृप्त हो जाए संतुष्ट होते किए हरउ तुष्टे भगवान हरि प्रसन्न टिक्य को अन्न कणारे से प्रसन्न हो गले से माने स्नान करते डुबा मारते तांकू हेकार आसला अरे माने 10,000 शिष्य पेट फुल पुरी गला माने एते पेट पुरी गला जे सी आगे तांकर टिके जागा नहीं कोनटा खाइबे जल भी ग्रहण कर परिबे समस्त उदर हाथ मार दे कि तृप्ति आमे कोन जीवा दाग्य सिंह घर को आमे जाई परिबे ना आमे सेठी एते बार चाली जाई परिबे चल आप आश्रम पड़े से स्नान करके से बार तक आश्रम फेरी गल ये अक्षय पात्र दुर्वासा ऋषि कथा पढ़छु कहू एवं आउ देखन दुर्वासा ऋषि थरे स्नान करथले तांकर कौपिनी जल रे भासी गला आर पारे थांती द्रौपदी महारानी से तांकर जो वस्त्र पिंधिले नूतन वस्त्र ताकू से साड़ी रु खंडे चिरी की तांक पाखकू छाडिले से स्वतरे आसिला का पाखकू द्रौपदी ऋषि पाखकू सीता को परिधान कले कौपिनी करके एवं तांको आशीर्वाद देले एई टिकिए वस्त्र तो पई वस्त्र अवतार हे जीवो एई टिकक वस्त्र खंडी छुटिया कपड़ा तो पई वस्त्र अवतार हबो देखंतु पूर्व देखि तांको आशीर्वाद जिते बेले दुशासन तांको विवस्त्र करथला वस्त्र टाणी 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 भगवान द इनकार्नेशन ऑफ सारी वेदानुद्धरते जगन्ति विहते भुगणमुद विभ्रमते दैत्यम जारयते बलिं छलयते खत्रं खयं कुर्वन्ते पौलस्तम जायते हलं कलयते कारुण्यमातनते दशा कृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः ये 10 अवतार अछि जानचंती 24 अवतार अछि मध्ये जानचंती किंतु गोटे अवतार कोन अछि वस्त्रावतार दुर्वासा ऋषि तांको आशीर्वाद देले ये तो पई वस्त्र अवतार आउ मते जानि थिबे अरे जते बेले कुंती पांडुंग पत्नी कुंती पूर्वरी अविवाहित थिले दुर्वासा गृह को आस्थिले एते सेवा कले एते प्रसन्न नै गले जे तांको एक मंत्र प्रदान कले तमे ए मंत्र माध्यम जे कोनसी देवदेव को आविर्भूत करि परिबो बा आमंत्रण करि परिबो से परीक्षा स्वरूप से मंत्र को सूर्य देवता को स्मरण कले तो देखिए कोन हो सत्य के मिथ्या तत्क्षण आसी आविर्भूत हे गले सूर्य देव एवं सी आविर्भूत कहले कोन बर मागु मागो मु तमिति फेरी परिबेनी कहले ना आगे मु परीक्षा कर निमित्त ये मंत्र उच्चारण करथिले आपन को स्मरण करी तो जेतु मु आसी छी कि वर प्रदान करिवि सी कर्ण को प्रदान करथि तो कथा बहुत विस्तृत अछि संक्षिप्त समय तो तांका पाखरु कर्णदेव सूर्यदेवंकर पुत्र महाशक्तिशाली तांका बाहर कवच अछि सहस्र कवच ये दुर्वासा ऋषिंकर कृपा बल रही तो जाबे दत्तात्रेय जो हमर अवधूत तांकर 24 गुरु थे जानिथिबे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश चंद्रमा सूर्य कपोत अजगर सिंधु पतंग भ्रमर मधुमक्षी गज मृग मीन पिंगला वेश्या क्रूर पक्षी बालक कुमारी सर्प सरकृत मक्किड़ी आ भृंगी
ये 24 संबंध रे वर्णना कले बहुत समय पड़ेबो तथापि गोटे दिटा तीनटा वर्णना करबा जे सरकृत कौन जो मकिड़ी जो बुढ़ियाणी जेपरी बुढ़ियाणी जे अवधूत 24 गुरु धारण कले 24 टका पाखु शिक्षा लाभ कले से कहले मु कोनसी मनुष्य को गुरु धारण करनी कोनसी मनुष्य मोर गुरु नहीं पिंगला बेसन बाहर कौन से कहीं गुरु कले तांको गृह को किसी लोक आसथिले से धान कुटुचंती हाथ रे कोन अछि चूड़ी अछि धान कुटिया समय से झमझम शब्द अछि तुलसी देखा रे शब्द तो रहउछि ए हाथरु काढले से हाथरु काढले शेषरे दीटा रहला दीटा मध्ये झमझम होछि शेषरे काढ के गोटे गोटे रखी जे तांका पाखरे शिक्षा कले जे एकांत वास ही एक सन्यासर लक्षण का सहित वास से पिंगला बेसा ठाकुर एकांत गुण शिखिले मकिड़ी माने जो बुढ़ियाड़ी सी भी तांकर गुरु कहीं से बुढ़ियाड़ी निज पार्टी जाल सृष्टि करे एवं सेही जाल रे निजे ही छंदी कि पड़ जाए आ बाहरी पारेनी से जाल निजे ही पड़े ताकू कहीं गुरु कले व्यक्ति एक भौतिकवादी व्यक्ति निजर विभिन्न प्रकार मानसिक कल्पना जल्पना बहुत प्रकार कल्पना करे एमिति कले सेमिति विभिन्न कल्पना जल्पना माध्यम रे एते से विभिन्न प्रकार प्लान बनाए जन हस्यति न दृष्टि न सोचति न कांक्षति शुभा शुभ परित्यागी भक्तिमान जो सत मम प्रिय भगवत से विभिन्न प्रकार कल्पना जल्पना रे मन संभूत करके से बुढ़ियाणी जाल सदृश से बांधी बाहरी पारे से शिक्षा कौन कले एक सन्यासी बा एक साधु एक संत सी निजर कल्पना कल्पना संभूत सूता माध्यम रे बांधी न है कि फ्री हवा दरकार फ्री हेले कृष्ण भजन कर एवं भृंगी भृंगी अर्थ गोटे कीट सी कौन करे तार जो खाद्य खाद्य खादक ना भृंगी एक कीट छुटिया पक्षी की धरे आणिक ता सम्मुख रखे रखिकी बड़ जोर साउंड करे तार लक्ष्य से साउंड करे ये जो पक्षीटा ता सम्मुख बते छोट कीड़ाटा सी तार साउंड को लक्ष्य एते भय करे जे ता साउंड को सुनी 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 ता रूप को देखी 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 शेष रे से ता रूप ही हो जाए कीटक ताको जे कीटकार भृंगी कीटकार ता रूप को देखे कि ये क्रीडाटी ता रूप को ही परिवर्तित हो जाए एक कथा कहउछन कि दत्तात्रेय एक व्यक्ति स्त्री प्रति एते आसक्त हो जाए स्त्री प्रति एते आसक्त हो जाए जनस्य मोहम अयम इति अहम ममेति ये मोर ये पुत्र मोर ये कन्या मोर जमी मोर गृह मोर सब किछ मोर पूरा संपूर्ण छंदी जाए से बुझी पारेनी शरीर कोन आत्मा कोन शेष रे से स्त्री प्रति आसक्त है कि गृह प्रति आसक्त है कि पुत्र प्रति आसक्त है कि शेष रे से अंतिम समय एक स्त्री रो शरीर लाभ करे अंत काले चमामेव स्मरण कृत्वा काले वरम प्रयाति मद भावं जातस्तस्य न संशय शेष रे एक स्त्री रो शरीर प्राप्त है जाए तबे ए वाली 24 गुरु धारण करथिले आमे तक वर्णना करिवे समय पळे जीवो हम नेक्स्ट जीवा आज्ञा प्रथम अध्याय अंतिम द्वितीय अध्याय को जीवा दक्ष शिवंक मध्य रे विवाद आपण जानथिबे कथा को या पूर्व आमे थरे वर्णना करथिलु
जेहेतु प्रथम अध्याय वंश वर्णना से अधिक समय कलु जे श्री विदुर मैत्र ऋषि को शिव दक्षंकर परस्पर कलहर कारण जिज्ञासा करते थरे ब्रह्मा जी ये अध्याय होची दक्ष शिव मध्य विवाह संक्षिप्त में कहीदेबू जे ब्रह्मा जी थरे एक बड़ यज्ञ करते से यज्ञ समस्त देवादेवी को आमंत्रण करथिले महादेव मध्य आस्तिले पत्नी सती मध्य आस्तिले दक्ष मध्य आसीथिले जिते बड़े यज्ञ प्रारंभ हवा पूर्वर टिके विलंबरे प्रारंभ हेनी प्रारंभ हवा समस्त देवदेवी आसारचंती स्थान को दक्ष प्रवेश कले दक्ष प्रवेश कले ब्रह्मा महादेव और सत्य को छाड़े कि समस्त दंडायमान माने छिड़ाई गले सम्मान स्वागत कले किंतु महादेव दंडायमान नहीं नथिले आ ब्रह्मा तो तांकर पिता सती तो तांकर पुत्री रागिले महादेव उपरे अरे मोर सावित्र तुल्य कन्या को मु ये एक प्रदान करथिली कि बण माने भस्म विलोपन करूची जोटारे सब मानकर अवस्थिति सेठारे से रहउची केते भर्सना कले महादेव तो सम्मान दिला सी गोटे यज्ञ कले बृहस्पति शव से यज्ञ नाम बृहस्पति शव यज्ञ कले से यज्ञ रे समस्त देवादेवी को आमंत्रण कले महादेव को कले नहीं एटा जो दक्ष शिवंक मध्य विवाद कर नथिले तो आमे जिबा तृतीय अध्याय कंटिन्यू होछि जे दक्ष यज्ञ को जीवा पई सतींकर इच्छा प्रकाश जिते बड़े दक्ष एठाते माने असम्मान थिले का महादेव द्वारा विवाद हला ब्रह्मा एक यज्ञ करथिले सब देवदेव को आमंत्रण कले दक्ष मध्य विलंबर आसिले दंडायमान हेले महादेव तांको ऊपर अप्रसन्न हेले असम्मानित हेले किंतु महादेव प्रकृत पक्षे तांको असम्मान जण पचारि पारे काहे कि महादेव काहे कि छिडा हेलेनी जे महादेव साक्षात महादेव देवदेव महादेव कि सदा सर्वदा तल्लीन थांती भगवान को सेवारे तपस्यारत ध्यानरत से जोटी बसंती से ध्यान रे मग्न हो जाती तिले परम वैष्णवानां यथा शंभु निम्नानां यथा गंगा देवानां अच्युत तथा वैष्णवानां यथा शंभु पुराणानां इदं तथा जे वैष्णव मानक भितर सर्वोच्च परम वैष्णव महादेव जो वैष्णव गोटे पिंपुड़ी को सम्मान करेनी जड़े पचारि पारे से दक्ष को कौन असम्मान कले अरे जड़े वैष्णव पिंपुड़ी भितर सर्वस्व च हम हृदय सन्निविष्ट मतव स्मृति ज्ञानम अपवनम च वेदैश्च सर्वे रहामेव वेद्य वेदांत कृतिवेद विदेव च दर्शन करे समस्त हृदय कृष्ण जो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सचमेन प्रणश्यति सर्वत्र कृष्ण दर्शन करे पिंपुड़ी की मध्य अवमानना करनी आसिल तक फुंकी दे कि माने पाद पाखर फुंकी दे काले मरि जीव कि जे पिंपुड़ी के सम्मान प्रदान करे से दक्ष जने प्रजापति लोकपाल ताको आगे परम माने महादेव असम्मान करिवे कि एटा के माने चिंतार विषय वस्तु नहीं आगे से तल्लीन थिले भगवान की सेवा तांको असम्मान करना से कथा छोट मोट कथा मुंड पसे नहीं महादेव परम वैष्णव तो एठारे जो हमर तृतीय अध्याय रे दक्ष यज्ञ जीवा पई सतींकर इच्छा प्रकाश सेटले असम्मान थे कि से निजे एक यज्ञ कले बृहस्पति शव से यज्ञ रे सब देवदेव को आमंत्रण कले एकमात्र कहा को छाड़ी की महादेव को
तो देखिले दल दल देवता माने जाउचंती आकाश पृष्ठ देखिले सती कि माने तांकर बाहनଙ୍କ सहित दल दल देवा देवी माने जाउचंती कोठी की तांकर पित्रालय दक्ष गृह को जाउचंती तो महादेव को प्रार्थना कले हे महादेव आपण तो अर्धनारीश्वर मु आपनकर अर्धांगिनी मते टिके दया करी सम्मति प्रदान करंतु मु मोर माने आपणकर ससुर दक्ष गृह को मुझी से कहते मोर पिता आपणकर ससुर दक्ष गृह किंतु महादेव सम्मति प्रकाश कले नहीं दृष्टि कहले आमको से आमंत्रण करना बिना आमंत्रण आम जाई परिबे देखंतु कह हीन जन एटी कथा अच्छी गोटे कथा आम कहबे चाहूछु शास्त्र कहछि क हीन जन सी सबुठ खराब लोक किए अनाहृतम प्रविशन्ति प्रहुष्टम बहुभाषति बिना आमंत्रण रे गृह को प्रवेश करे मीठा मीठा कथा कहे ताठु क्षुद्र लोक नहांते क्या महादेव कहले हमको आमंत्रण हेनी विदाउट इनविटेशन ले जिबा किंतु शास्त्र कहछि किए हीन जन अनाहृतम प्रविशन्ति कमिंग विदाउट वेलकम and asking telling sweet words प्रहुष्टम बहुभाषति सुंदर सुंदर कथा के ताकू आमे डाकिनु से आसी कहछि आज्ञा एटा गोटे भल जमीटे अछि आमे देखिछि मु आपन कम रेट रे कर दे किंतु आमे त कहि नाउ जे गोटे जमी हमर देखु से ऑटोमेटिक हम घर को प्रवेश करी एक कथा प्रपोजल दउछि जदि समिति व्यक्ति आपन गृह को प्रवेश करे शास्त्र कथा अनुसार ता कथा आपन ता लाळित तार पुष्प माने पुष्पिता कथा रे तार माधुर्य कथा आपन केबे भी भासी जिबेनी काहे कि से होची क्षीण जन तार माने बिहाइंड द चीटिंग प्रोपेंसिटी ही हैज सम चीटिंग प्रोपेंसिटी से आपन को ठकीबो अरे आपन कोइना के जमी कथा से आसी को जाग्या ते सुंदर जमीटे देखिछि एति में आपन 10 लाख टका आपन को 5 लाख टका कम रेम कर दे ताता एक्चुअल दाम 10 लाख को 5 लाख रे कर दे किंतु आपन ताके इनवाइट करना से आसी आपन आपे अनावृतम प्रविशन्ति से शब्द हीन जाते तेणुक महादेव कहते आमको आमंत्रण है आम कहीं जीवा तो सती निहाती बाध्य कले आज्ञा आम जीवा महादेव सम्मति प्रदान कले शेष सती कथार बाध्य हेले हाँ सम्मति प्रकाश माने अंतर सहित इच्छा नहीं कहले ठीक अच्छी गोटे कथा मुझे तुमको जदि सेटा तुम जाओ तुमर अमंगल हम तथापि सती कहले मुझे जीवी सेठु महादेव और नंदी सहित सती देवी को जीवाई कहले आप जानते जो दक्ष गृह गल दक्ष किए एठारे महादेव कहते मु वासुदेवंकर दास सुतराम मु वैष्णव व्यतीत वैष्णव विद्वेषी बहिर्मुख व्यक्ति को बाह्य देह द्वारा अभिवादन करे नाही देखो ये भागवत कथा गया सत्वं विशुद्धं वसुदेव सद्धितं यदीयते तत्र कुमार द्रुतं सत्वे च तस्मिन् भगवान वासुदेव सध्यतो मे मनसा विधीयते देखो कथा ये अप्राकृत विशुद्ध अंतकरण ही वासुदेव शब्द द्वारा अनुष्ठित जेहेतु सेतु त्रिगुणातीत परम पुरुष वसुदेवंकर वासुदेवंकर प्रकाश होता है मु मध्य से विशुद्ध अंतकरण रे जे भौतिक इंद्रिय रे अगोचर से भगवान वासुदेव को नमस्कार द्वारा सेवा करता है एक कथा महादेव कहते श्रीमद् भागवतम रे एवं पुणी कहते से महादेव कहते मु वासुदेवंकर दास सुतराम मु वैष्णव व्यतीत वैष्णव विद्वेषी बहिर्मुख व्यक्ति को केबे हेले बाह्य देह द्वारा अभिवादन करना पुनश्च मु सतत वासुदेव ठारे प्रपन्न होई
प्रति प्राणी को सम्मान प्रदान करता है। एक देखो महादेव भागवत एक कहते मु वासुदेव ठारे प्रपत्ति लाभ करिकी समस्त प्राणी को सचराचर जगतर समस्त प्राणी को मध्य सम्मान प्रदान करे कथा किए कहते महादेव साक्षात कहते। आ वैष्णव विद्वेषी तांको मु वैष्णव विद्वेषी तांको बाह्य देह द्वारा अभिवादन करना से जो दक्ष को सम्मान प्रदान करने कहीं से आज्ञा अवैष्णव विद्वेषी विद्वेषी वैष्णव विद्वेषी तेज से ज्ञान रे से न्याय रे सी सम्मान प्रदान करना तो सी वैष्णव सम्मान प्रदान करती। देखिए दक्ष किए देखु जिते सृष्टि आप सृष्टि चक्र कथा आम कहूलु जे सृष्टि हला से व्यासदेव जन्मजय परीक्षित पुत्र हेले जन्मजय तांको कहउचंती जे नारदंक मुखरु जहा श्रवण करछि मु कहउछि किए कहउछि व्यासदेव कहउछि मु जहा नारदंक मुखरु श्रवण करछि हे जन्मजय परीक्षित श्रुत मु तुम सम्मुखरे ता उपस्थापन करछि। इसी ब्रह्मा तप बल रे मानस सृष्टि कले सप्तर्षि को क्रतु पुलह पुलस्त अत्रि अंगिरा मरीच वशिष्ठ को सप्तर्षि को सृष्टि कले एवं ब्रह्मा को क्रोध किए जाता है रुद्र एकता में कैसा चपड़ को ब्रह्मा को निकटरू जे तांको निकटरू से जे मानस रूपे कहले जे मानस रे मानस संतान सृष्टि कर देखो एटी गोटे कथा हम आपको रखिबु जो मानस मानस स्तर रे सेवा सब सर्वोच्च सेवा गंगा कूल रे जड़े साधु बहुत गरीब बहुत दैन्यता तांकर अछि नम्रता अछि हरे कृष्ण राधे किंतु से बहुत दरिद्र से मानसिक सेवा करती आपण शक्ति अच्छी आपण भगवान को सुंदर सुंदर खाद्य पदार्थ सुंदर भोग अर्पण कर सुंदर वस्त्र पिंधाउछंती सुंदर अल्टर रखिछंती किंतु शक्ति नहीं ना अल्टर अच्छी ना मंदिर अच्छी ना विग्रह अच्छी ना वस्त्र अच्छी ना फल अच्छी ना भल भल सुस्वादु खाद्य किसी घर ना सी खाद्य पाते माधुकर करी कोट रुटी पटाई आनी कोट अन्नटी काढ़ी खाऊ किंतु किंतु सी मानस स्तर सेवा कर थरे कौन कले चाहिए जे भगवान को खीरी देवे मु आज मो प्रभु को खीरी खुआईबी एक तो पूर्व में आप कहूँ आउ थे कहूँ जेहेतु एक मानस स्तर कथा पड़ी ब्रह्मांकर से भगवान को खीरी खुआबे मन मध्यम चिंता कर मानसिक चिंता करती मु कौन कली एक चुली कली माने काष्ठ रे अग्नि लगैली पात्र आनिली जल देली माने मन मध्य चिंता कर जल प्रदान कली एवं जल प्रदान करसला परे क्षीर देली सेतरे चाउल देली खीरी माने चीनी देली अलैच सब प्रदान कली सब मन मध्य रे एबे खीरी हे गला भगवान अर्पण करिबी सेठे भाबिले अरे मु खीरी तो कर देली पूरा गरम गरम खीरी काले देले भगवान को माने ठंडा करी न देले भगवान को पार्टी सहीबनी पार्टी पड़ी जीवो जीवा फुटका है जीवो देखिया मुटे टेस्ट करे गरम अछि कि ठंडा अछि एमिते मानस ई भी मध्य मानस मध्य एते तल्ली नै जंतु मानसिकता माध्यम देखिया मु टेस्ट करे गरम अछि कि ठंडा अछि चेटले जो खीरी करथिन मानसिक एटले हाथ पुरे देले आंगुली पुरे देले आंगुली एटले जस्ट पुरे एमिते हे गेले जे आंगुलटा पड़ी गला सत्तु सत्तु देखिले जे तांको आंगुलटा पूरा आज्ञा माने माने सिजी जाइछि संग संग फुटका हे गेला आंगुल खीरी नाही ना पात्र अछि ना अग्नि अछि ना किछि नाही किंतु आगे तांको अंगुलटा संपूर्ण भाव फुटका हे जाइछि देखो की स्थिति साक्षात भगवान आविर्भूत हो गले ग्रहण करिया मान ए जो ब्रह्मांकर जो मानस पुत्र मानस स्थिति तक कहजंती से मानस संबंध रे एक कथा कहला ए तांकर जो ब्रह्माजींकर अंगरु
से ब्रह्माजींकर अंगुष्ठी तांकर दक्षिण अंगुष्ठी जातले किए दक्ष दक्षकर उत्पत्ति होइछि ब्रह्मांकर दक्षिण अंगुष्ठी अंगुष्ठी जात आज्ञा एवं तांकर वाम अंगुष्ठी दक्षकर पत्नी जाते एवं तांकर सी आदेश कले काहाकू तांकर दक्षकर तांक पत्नी के नाम कौन बीरिणा आउ असन्नी ब्रह्माजी जेते बेले सृष्टि रचना पई आदेश कले जे असन्नी गर्भरु 5000 हैरस्य पुत्र देखंतु माने सृष्टि हैरस्य पुत्र सृष्टि हेले एवं से जो हैरस्य सृष्टि हेले सेमानंकु जेते बेले तांको कहला तमे प्रजा सृष्टि करो से 5000 हैरस्यंकु कोन कले कि नारद महर्षि तांकु भगवत ज्ञान प्रदान शिक्षा देले એટલે भगवत ज्ञान शिक्षा देले तुम समग्र संसार रे विचरण करो आ तमे विवाह हो छेसी 5000 हरिशन को से कोन कले ब्रह्मचारी करी कि समग्र जगत रे विचरण करी कृष्ण भजन करेले हरि भजन करे दक्ष प्रसन्न ले पूर्णी तांको शरीर पूर्णी किछि प्रजा सृष्टि कले तांकु मध्य देवर्षि नारद महर्षि तांकु ज्ञान प्रदान करी तांकु मते ब्रह्मचारी कर देले अरे सेना ग्रस्त हेले सृष्टि आगु जीवो तो दक्ष अप्रसन्न हेले क्रोध करी कि ब्रह्मा माने नारद महर्षि अभिशाप देले तमे कोनोसी जागा रे छणे छडा बेसी समय तम रही परिबे आपण देखंतु नारायण नारद महर्षि गोटे जगह रहिले नारायण माने उच्चारण कले सेठ रहिले 5 मिनिट 10 मिनिट रहिबा એટલે પૂર્ણ से स्थान पर कोट रही पारतनी तार कारण कोन दक्ष तन अभिशाप देथले तमे बेसी समय एक स्थान रहिबनी जदी रहिबे बेसी समय ये शिक्षा दे कि समस्त ब्रह्मचारी कर देबे तमे गोटे जगह टिकी पारिबनी माने अवस्थान करियो पुणी स्थान पर करते अभिशाप देला दक्ष का प्रति ये जो नारद महर्षि चतुर्थ अध्याय रे सतींकर अग्नि प्रवेश आपण जानथिबे जते बेले दक्ष यज्ञ को आमंत्रण करने काकू स्वामी को आमंत्रण कलेनी तांकर पुत्री जितने प्रवेश कले देखिले तांकर माता अछंती तांकर भगिनी अछंती तांकर मातांक छडा सती की केही सम्मान प्रदान कलेनी केही भलर पदे मध्ये कथा हेलेनी साक्षात दक्ष मध्य तांकर स्वामी को तो पचारिवा दूर कथा तांकू माने कुत्सा रटना कले तांको माने तांको विरुद्ध रे गाली कले तांको पुत्री को मध्य गाली कले तांको पुत्री कहले मु माने मु धिक तम भली एक शरीर पाखरु मोर जन्म होइछि ये होछि मृत शरीर साक्षात सती महा कहउचंती दक्ष को ये मोर शरीर धिक मोर शरीर मरि जीवा भलो काहे कि ये शरीरटा जान को पाखरु जात हेछि से तो निंदुक से तो महादेव निंदु समग्र संसार रे जे श्रेष्ठ सबुठार श्रेष्ठ महादेव समग्र संसार श्रेष्ठ महादेव महादेव को से निंदा करछि परम वैष्णव निंदुक से तबे तांको से निंदुक को शरीर मोर उत्पत्ति ते मोर मध्य शरीर निंदा योग्य मोर शरीर रहबा योग्य नुहे अग्नि प्रदान करी मोर शरीर के भेलु नै जो पितांक पाखु ए शरीर आछि धिके शरीर तांको सम्मुख रे अग्नि को आवाहन कले प्रवेश करी गले सती तबे कथा आपण माने जानि थिबे माने भक्ति रे कथा आपण हम थर कहउतलु जे दीनबंधु दास पुरी जगन्नाथ पुरी हमरे दीनबंधु दास
ମାନେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଗରିବ ଗରିବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ସେ ସେବା କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଭିକ୍ଷା କରିବେ ସେବା କରିବେ ତ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ ଚାହିଁଲେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଯେ ଅତି ଭକ୍ତି କରିବେ ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଭକ୍ତି କଲେ ଭଗବାନ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ଯସ୍ୟ ଅହମ୍ ଅନୁଗ୍ରହଣାମି ହରିଷ୍ୟେ ତତ୍ ଧନମ୍ ଶନୈ ଶନୈ ଏଟା ହଉଛି ଲକ୍ଷଣ ଯଦି ଦେଖିଲେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲସ୍ ହେଇଯାଉଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଲସ୍ ହଉଛି ଭଗବାନ ତାକୁ କୃପା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏଡ୍ ହେଇକି ଆସୁଛି ଧନ ଜନ ମାନେ ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳୁଛି ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି ତା ପାଖକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଧନ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ କୃପା କରୁନାହାନ୍ତି ଯସ୍ୟ ଅହମ୍ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହାକୁ କୃପା କରେ ଅନୁଗ୍ରହଣାମି ତତ୍ ଧନମ୍ ହରିଷ୍ୟେ ମୁଁ ତାର ଧନକୁ ହରଣ କରେ ଶନୈ ଶନୈ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ପାଖରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ଜନ ଅତି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଦୂରେଇ ଦିଏ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ପତ୍ନୀ ପୁତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦିଏ ସବାରେ ଇଏ କଣ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଅଛି କାହା ସହିତ ପଡୁନି ଆରେ ସେ କୃଷ୍ଣ ତାକୁ କୃପା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା କୃପା କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି କୃପାର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଲାଇଫରେ କିଛି ହଉନାହିଁ ତ କୃଷ୍ଣ କୃପା କରୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ହେଇଯାଉଛି ତ କୃଷ୍ଣ କୃପା କରୁଛନ୍ତି ତ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏତେ ଗରିବ ସ୍ଥିତି ହେଲା ପରେ ବି ସେ ସେବା କରନ୍ତି ଭଗବାନ ଆସିଲେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଆସିଲେ ଆସିକି ଦ୍ୱିପହର ସମୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାଦ ଭକ୍ଷଣ ସମୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ ପାଣି ପିଇକି ଶୋଇବେ କୋଉଠି ଚାଉଳ ମୁଠେ ଖାଇଲେ ହେଲେ ନହେଲେ ନାହିଁ ଅତିଥି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ନା ତ କଣ କରିବେ ଆସି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଦୀନବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେବା କର ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର ତ ମୁଁ ଭାରି ତୃଷାର୍ତ ଏବଂ ଭୋକିଲା ମଧ୍ୟ ମତେ ଜଳ କିଛି ଦିଅ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସମୟରେ କି ତାଙ୍କ ଘରେ ଚୁଲି ଜାଳି ନଥିଲା ଚୁଲି ଜଳା ହିଁ ନଥିଲା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କି ଏକଥା କହିଲେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ ପତ୍ନୀ କଣ କରିବେ ତ ଅତିଥି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସେ ବସେଇଛନ୍ତି କିଛି ଆଜ୍ଞା ଘରେ ନାହିଁ ସର୍ବତ ଖୋଜିଲେ କିଛି ନାହିଁ ତଣ୍ଡୁଳ କଣାଟା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କଣ କରିବେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ଲୁଗାଟା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ତ ଗୋଟିଏ ଲୁଗା ଚିରା ଲୁଗା ସେ ଲୁଗାରୁ ଗୋଟିଏ କାନିକି ଗୋଟେ ଫାଳକୁ ଚିରିଦେଲେ ଚିରି କଲେ ତମେ ବଜାରକୁ ନେଇଯାଅ ଯଦି କେହି କିଣି ନିଅନ୍ତି ଯୋଉ ପଇସା ଟିକେ ହବ ସେଥିରେ ଅନ୍ନ ଆଉ ପରିବା ଯାଇ ଆଣିକି ଅତିଥି ସେବା କରିବେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି କିଏ କପଡା ଚିରା କପଡା ଏକା ନବ କହିଲେ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କିଏ କପଡା ନବ କେହି ନଉନାହାନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଏକ କ୍ରେତା ରୂପେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସିକି ତାଙ୍କ କହିଲେ ମୁଁ କିଣିବି ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ଚାଉଳ କିଛି ଯାଇ କିଛି ପନିପରିବା ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରାନ୍ଧିକି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି କାହାକୁ ସେ ଅତିଥି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପରସା ଯିବ ସେତେବେଳେ କହିଲେ କାମ କର ତମ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଡାକ ତମେ ଆସ ସାଙ୍ଗର ସବୁ ଖାଇବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପତ୍ନୀ ଯିଏ ଯେହେତୁ ଲୁଗାଟା କଟା ହେଇଛି ସେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଲୁଚିକି ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ଲୁଗା ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡେ ଚିରା ହେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ମାତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ତମେ ମୁଁ ବହୁତ ଭୋକିଲା ତମେ ଆସ ପତ୍ନୀକି ଡାକ ଏଠି ବସିବା ସେ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ଆପଣ ପାଇଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଆନ୍ତୁ ଆମେ ପରେ ପାଇବୁ ନାଇଁ ତମେ ଆସିଲେ ଆମେ ପାଇବୁ ତମ ପତ୍ନୀକି ଡାକ ତମ ପତ୍ନୀ ଆଜ୍ଞା ନାହାନ୍ତି ଘରେ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ପାଇଦିଅନ୍ତୁ ସିଏ ଆସିଲେ ଆମେ ପାଇବୁ ଦି ପାଣି ପାଇବୁ ନା ତମ ରାନ୍ଧିଲା କିଏ ପତ୍ନୀ ଅଛି
गृह प्रवेश कले पत्नी अर्ध उलग्न अवस्था तो भगवान माने टिके हस्त चालना करदेले समग्र शरीर आवृत हो गला एवं से स्थान परित्याग कले परीक्षा करने आसती धन धान्य भरी गला माने सुंदर रूप सुंदर धन सुंदर गृह गाई महिषी आदि पूर्ण रूप हो गला भगवान से स्थान परित्याग कर तो कहबा तात्पर्य भक्ति जे भक्तिया माम ये तो भजन्ति मांग भक्तिया मयि तेषु चपीहम भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु है को एठी जे महादेव को निंदा कले वैष्णव भक्त भगवान का भक्त भक्ति की निंदा किए वैष्णव निंदक दक्ष भक्ति भक्त निंदक तो आमे जिबा पंचम अध्याय को दक्ष यज्ञ भंग श्री मैत्रेय महर्षि कहले नारदंक मुखरु सतींकर देह त्याग वार्ता ओ दक्ष यज्ञ उत्थित रुक गणक द्वारा रुद्र अनुचरण मानकर विताड़न संवाद श्रवण करी क्रुध शंकर मस्तक गोटे जटा उत्पादन करी भूमि रे निक्षेप कले जिते बड़े देखिले दक्ष यज्ञ भंग कौन महर्षि पाखर शुणिले महादेव जे एमिति दक्ष आपण को निंदा कले गाली कले तांकर पुत्री सती को मध्य असम्मानित कले शेषरे सी कह जायछि सती मध्य कहिले जदि वैष्णव निंदुकंकर तीनोटी उपाय कानरे जेउटी वैष्णव निंदा होची सती साक्षात कहउजंती कानरे कर्णरे हस्त देकी पळे जीव सुनिबनी वैष्णव निंदा जदि आपणकर सक्षम अछि जदि आपण सक्षम से कौन करिवे से शास्त्रार्थ करिके तांको हरेबे नहले जीवा को परित्याग करिवे जीवा को छिड़े देबे नहले निजे अग्नि रे मरि जीवे एकथा सत्य कोजन स्थान परित्याग करिवे शास्त्रार्थ करिके ताको माने ता पाकर विजय लाभ करिवे जदि विजय लाभ न करि परबे अग्नि रे निजे को झांस देके मरि जीवे वैष्णव निंदा श्रवण करिवे एवं सत्य कहले मोर से पिता मुझे घर पारिनी मुझे शास्त्रार्थ करी आसी स्थान परित्याग कर आसी ना श्रद्धा मुझे जानी मो स्वामी मत मना करते अमंगल हम स्थान भी परित्याग करी झीवा भी छादन कर कहीं से पिता देखो सम्मान दौर गोटे जिन कर अग्नि रे मो झांस दे अग्नि रे ही झांस देचंती हरे कृष्ण तो एक श्रवण कले किए तांको कर्ण को गला महादेव कर्ण को एमिति एभली अवस्था सतींकर ताहा एमिति हे गला अत्यंत क्रोधर कोन कले तांकर मस्तक रे जटा उत्पादन कले पृथ्वी की फिंगिले अग्नि जात हला साक्षात शत्रु जात हेले वीरभद्र जी की भगवान महादेवंकर एक जटांकर अवतार प्रथम अवतार जहां को जटारू मस्तकरू आविर्भूत हेतले सी हेले तांकर साक्षात अवतार सी हेले वीरभद्र देव यज्ञ स्थल को माने प्रवेश कले तांकर सम्मुख रे जे भी आसला तांको निहत कले शेषरे दक्ष को संक्षिप्त कथा रखुची समय गाड़ी शेषरे तांकर दक्षंकर मुंड को छिड़े की अग्नि रे पकाई देले यज्ञ अनुष्ठित हो पारानी एकदम संक्षिप्त कथा रखा विस्तृत संभव नुहे महादेव क्रोध को संवर्ण करने निमित्त यज्ञ जेतु माने दक्षंकर यज्ञ इनकम्प्लीट रहिला महादेव अप्रसन्न हेले
तांकर मस्तक को छिड़े के अग्नि रे पकेले साक्षात ब्रह्मा जी भगवान विष्णु आविर्भूत है कि कैलाश पर्वत गले आज्ञा निजे साक्षात भगवान विष्णु कैलाश पर्वत को महादेव पाख को ब्रह्मा को नहीं गल प्रार्थना कल भगवान विष्णु प्रार्थना कर भगवान महादेव ब्रह्मा मध्य प्रार्थना कर हे परम वैष्णव टिके शांति टिके प्रसन्न लाभ कर कथार साक्षात भगवान आसत कथार प्रसन्न है कि भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा जी कहते आपण काम करंतु से यज्ञ को पुनः प्रतिष्ठित करंतु ताको संपन्न करंतु माने अधा अवस्था तला संपन्न करंतु आ रुद्र को ना जो दक्ष को आपण बंचे दियंतु निजे आसिकी प्रसन्न है आसिकी दक्ष को जेतु मारी थिले से को छाग छेली तंकर ग्रीबार लगैचंती से बंचछन हठात जेमिति निदर उठंती ले दर्शन कले एक छेली काणी के तक मस्तक लगेले मरि गई से मस्तक लगेले लगे दर्श देखिले तक ले देखिले तंक चक्षुरु माने एते अद्भुत शक्ति अमृत रहा हला ये दक्ष जेमिति निदर उठे उठिला शेषर तंकु तंग पाद पद्म रे बहुत स्तुति बहुत बोले बहुत बहुत कराई छी तंक पाद पद्म रे तंकर प्रपत्ति लाभ कहचंती क्षमा कर दे भूल करची आपण एते कृपण एते दयालु मु एते कुकर्म करसला पर भी मते आपण क्षमा प्रदान पूर्वक मते बंचे दिचंती बहुत स्तुति करचंती षष्ठ अध्याय ब्रह्मादि देवता मानकर शिवंक निकट रे प्रार्थना ये जो कथा आपन हम कहलु जे प्रार्थना माने कोन थिला कैलाश पर्वत को जाके प्रार्थना कले आपन जानचंदी कैलाश जो कैलाशंकर गाथा कैलाश पर्वत किसी कैलाश पर्वत सी माने देखंतु जो हिमालय देखंतु हिमालय पर्वत जत्ते बड़ तार 50% कैलाश जोटा कि भगवान महादेव वास कर आज का डेट पर्यंत कौन व्यक्ति कैलाश पर्वत को जाई पारना किंतु हिमालय को 6000 फुट 6000 मीटर छोट किए कैलाश पर्वत हिमालय अपेक्षा से कैलाश पर्वत को आज का डेट पर्यंत एक व्यक्ति मध्य चढ़ी पारनी किंतु हिमालय को 7000 पीपल्स नासा रे वैज्ञानिक माने रिपोर्ट दिन 7000 टा लोक 7000 पीपल्स से माने चढ़ी कोठी हिमालय किंतु आज का डेट पर्यंत कैलाश पर्वत जोटा कि महादेव अवस्थान पार्वती अवस्थान श्री गणपति श्री कार्तिक देव अवस्थान नंदी भृंगी अवस्थान सेठारे कौन व्यक्ति आज का डेट पर्यंत जाई पारना जदि कौन व्यक्ति कैलाश पर्वत को चढ़े माने नासा रे माने द सीनियर साइंटिस्ट ऑफ द नासा से निजे तंकर जो सैटेलाइट छाड़िथिले कोडी कैलाश पर्वत को तो किछि बाट पाइले नै क्या गोटे सैटेलाइट माध्यम रे गोटे पिक्चर सिटी उत्तोलन कले से सैटेलाइट तक प्रदान कला कोन जे माने एत अद्भुत कथा सुनिला आपण आह्लादित हेबे से नासा वैज्ञानिक मानकर जो सैटेलाइट माध्यम रे पिक्चर टा उत्तोलन हेकला देखिले साक्षात महादेव बसिक तपस्यारत एवं एमिति महादेव को एमिति रूप जे से कि समग्र वर्ल्ड रो जन समाज को से दर्शन दउ से एत अद्भुत सुंदर पिक्चर उठे उत्तोलन हेक एवं ओम शब्द उच्चारित होछि एकरा नासा वैज्ञानिक माने रिपोर्ट नै जन देखे एक पिक्चर सहित आ से किछि बाट किछि माने जिते प्रकार चेष्टा कले किछि भी से रिपोर्ट पाइले एक गुटे रिपोर्ट पाइले एवं जो माने जानती कैलाश पर्वत को जे उत्तोलन चढ़िबो तांकर 2 वर्ष भीतर मृत्यु होई एबला बहुत एग्जांपल दिया जे चढ़ी 2 वर्ष भीतर मरि आपण जे चढ़िबे माने आपण नख आ चुट्टी 2 सप्ताह जेति बढ़े
सी आज्ञा माने केते घंटा भितरे माने गोटे दिन नहीं केते घंटा अरे भितरे भाई बढ़ी एक बात आपण यदि कैलाश चढ़िबे आपन जेमिति आपण देख माने बहुत शीघ्र वृद्धि प्राप्त हबो 2 सप्ताह जति हुए आपण को 2 घंटा 3 घंटा तक आपण को जल्दी वार्धक्य आसीबो सेठी पहुंच नथिबे अधर मरि जिवे एवला केते लोक जाई पन अधर मरि जिवे चुट्टी नख वृद्धि होइछि आश्चर्य कि बुझी पान जाई तो कोन करिवे फेरी पान अधर मृत्यु होइछि एवं आउ कोन हबो आपनकर मतलब अहंकार जीवे ना कैलाश पर्वत को आरोहण करिवे अहंकार आपनकर किछि बाटा गल्ला परे आपनकर पाद आ ग्रीवा ई जो गर्दन ये दुटा एते जंत्रणा कर एते बथा हे जिवो आपण होची माने मन भीतर माने आपनकर मानसिकता चेंज हे जिवो जे कैलाश पर्वत को चढ़िबो तार पाद एवं ग्रीवा अत्यंत कष्ट प्रदान करिवो एवं कष्ट प्रदान करले तार मानसिकता चेंज हे जिवो ऑटोमेटिक चेंज हे जिवो दक्ष यज्ञ पूर्ण हला